Okay. Yes, what is eutrophication? It's a very new term for you people. So probably eutrophication is what? When you have your soap का जब हम use करते हैं या फिर सर्फ एक्सेल and all that. So उसका अच्छा खासा मस्त foaming and powder का ये बन जाता है. And आप लोगों ने देखा होगा, we are not aware because we have a bathroom and specifically from that you have the drainage system में that going everything. But ultimately it meets somewhere. It's thrown away. It meets somewhere. So you must be seeing people who are washing clothes near the rivers and everything, and वो directly उसमें हो जाता है mix drinking water या फिर drinking water sources में हो जाता है. तो excess of phosphorus, जैसे उसमें phosphorus present होता है इसमें surf में. So when you have excess of phosphorus getting collected over there, you have weeds के जैसा, मतलब weeds जैसे crops के बीच में grow होते हैं, ये पता होगा आप लोगों को. Crops के बीच में weeds grow होते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे algae like structures पूरी तरीके से drinking water के body पे वो grow होना start हो जाते हैं. That is eutrophication basically. So short में बताया मैंने एकदम. So they get excess of phosphorus, so उनका number बढ़ जाता है. And you must have seen the few of the like ponds and everything having that green color layer, जिसको हम algae या फिर इसको मराठी में शेवाळ करके भी बोला जाता है. तो पूरा एरिया ही वो खराब हो जाता है. या फिर you must have seen कि बड़े जो वाटर बॉडीज है उसमें से नेट वगैरह लगा के उसको क्लीन किया जाता है अपर सरफेस इसके, सो दैट नीचे अफेक्ट ना हो. बट देन बड़े बड़े कुछ वाटर बॉडीज रहेंगे जहाँ पे नोबडी इज क्लीनिंग, तो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो ग्रीनिश लेयर बन जाएगा उसके ऊपर. एंड वो ग्रीनिश लेयर क्या करता है, वो पूरी तरीके से ऐसा कॉन्कर कर लेगा उसके इसको, मतलब अपर लेयर को, कि सन कैन नॉट पेनिट्रेट इनसाइड. Whatever sunlight is received, they will be using it up for their growth and reproduction. So अंदर जो aquatic life है, that starts getting affected drastically. So it's not a good thing. That is like a disaster, because if अभी ऐसा अगर गंदा पानी आप देखते हो तो obviously you cannot use that water for anything. Drinking तो बहुत दूर की बात है. Other for domestic purpose also you won't be using that water. और अगर ऐसे ही बड़े बड़े water bodies नहीं यूज होते गए तो you can just make out what amount of water we are wasting. Understanding? So that can be considered into geological. Atmospheric में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है. Hot and cold waves, snowstorms, snowfall, cyclones, hailstorms, then drought, meteorite, sunspots. Meteorite के बारे में जैसे एस्टेरॉइड का आप लोगों ने सुना ही होगा कि you have बहुत बार ऐसे हो चुका है कि न्यूज में आता है एस्टेरॉइड हिट होगा, ये पार्ट में हिट होगा, एंड देन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एंड वी रियली गेट सेव फ्रॉम दैट पार्ट. फिर एस्टेरॉइड का अपने पास अच्छा एग्जांपल है डायनासोर्स गेटिंग किल्ड इन दैट. तो वो भी एक डिजास्टर ही था, बट दैट वाज वो फॉर, हम क्या बोल सकते हैं, गुड के लिए हुआ वो डिजास्टर, ऐसा बोल सकते हैं. If dinosaurs would have been there, then we wouldn't have been here, obviously. So that is something for good. But yes, if you have asteroid or meteorite coming and hitting like that, that is also one of the disasters. Other than that, you have, there is the hot and cold waves. Now harvesting period होता है. अगर harvesting period के time पे rainfall हो जाता है तो what happens? हार्वेस्टिंग पीरियड में अगर रेनफॉल हो जाता है तो क्या होगा, मॉइस्चर लेवल बढ़ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले तो क्रॉप खराब ही हो जाएगा. मॉइस्चर होने की वजह से उसको कीड़, जो बोलते हैं मराठी में कीड़े लग जाएंगे, उसको बहुत सारा इंसेक्ट्स अटैक कर लेगा. सनलाइट से वो मर जाएंगे, बट देन इफ रेन्स आर देयर इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय द होल क्रॉप. एंड देन व्हाट इज द अल्टीमेट, तो ये जो ऐसे रेन्स बीच में आते हैं, those are nothing but they behave like a disaster only. Ask the farmers when they are ready with the crop throughout 3-4 महीने का, उनका 6 महीने का मेहनत, and then you have all the crops getting devastated. प्लांट में देखेंगे क्या दिया है. Yes, last bench girl, can you read? Biological पढ़ो. Plant example: forest fire, fungal disease spreading, blister, wheat, aquatic carrot, grass, common grass. Animals: infectious viruses, bacteria, cholera, malaria, hepatitis, plague, insects, bite of poisonous animals, etc. हैंडमेड भी पढ़े, उसमें कुछ एक्सप्लेन करना ऐसा है ही नहीं, सब आपको पता ही है, डिजीजेस के बारे में दिया हुआ है. यस, Man-made, I know. Poisonous gases, atomic test, unplanned action, accident. International:
पे अनप्लान्ड एक्शन एक्सीडेंट के बारे में, जैसे चेर्नोबिल में हुआ था इन रशिया, यू हैड दैट blast which happened, the reason was something else over there. जो काम चल रहा था या जो प्रोडक्शन चल रहा था उसके लिए the workers were compelled to work for more hours, 8 12, ठीक है, उससे भी ज्यादा. So if you obviously your body needs rest, right? आप नॉर्मली अगर लेक्चर अभी पीपल विल अगर अटेंड कर रहे हो, बट अटेंड भी कर रहे हो तो दिस इज गेटिंग यूज्ड. So at least after the lectures for some time you need some kind of rest and then you can come back. Same thing happened over there कि they were not given any kind of rest and then कुछ minute mistake होने की वजह से कुछ तो गलती हुआ रहेगा. Some not carelessness नहीं बोल सकते पर ठीक है, some sort of carelessness and then ऐसा blast हुआ कि जो already productivity production किया था वो सब उसमें ये हो गया. एंड चेर्नोबिल में जो हुआ था, मतलब जैसे I think one more is the gas tragedy हुआ था. You have many of the examples like this. Even in Chembur, you have HPCL and BPCL besides to each other. You must be knowing that. Petroleum, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum. ठीक है. तो BPCL में ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था कि उसके साउंड से HPCL का जो सराउंडिंग पेन्स है ना, लाइक योर विंडो पेन्स, दे ब्रोक. तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि इसके साउंड से इधर इतना ये हुआ, तो इमेजिन करो कि BPCL में क्या हुआ रहेगा, एक्सप्लोजन का इफेक्ट. बट ये अपने हाथ में नहीं है, दीज आर एक्सीडेंट्स. हम लोग केयरफुल रहते हैं, एवरीबडी, लाइक आई हैव डन इंडस्ट्रियल विजिट्स, तो हम लोग को जब बोला जाता है कि यू आर नॉट सपोज्ड टू टच दैट थिंग, तो ऑब्वियसली कुछ तो उसमें से गैस रिलीज होता होगा या कुछ तो मेटल वो नहीं होगा सही जिसके टच, बिकॉज किड्स आर देयर या फिर इवन वी आर लाइक वी वर लाइक चिल्ड्रन, तो अगर हाथ लगा के आप कहीं उसको कंज्यूम कर लेते हो तो माइट बी दे कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम. सो दे आर वेरी मच केयरफुल, बट स्टिल होने का चांसेस है. न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे हमने चैप्टर बॉयलर के बारे में पढ़ा था कि जिसमें यू हैव यूरेनियम एंड थोरियम जो कंटिन्यूअसली चेन रिएक्शंस करते रहते हैं. न्यूक्लियर फिशन, you have the continuous chain reactions happening, polymerization reaction which takes place. तो exothermic reaction है, तो heat continuously release होते जाएगा. heat जैसे continuously release होते जाएगा, what is going to happen, बाहर, ये मैंने explain किया था 8th में कि अगर आप एक water container रख देते हो तो after some time if you try touching that water it becomes completely hot. The reason because it absorbs. तो उसको कोई control करना चाहिए, अगर वो नहीं time पे control हुआ तो वो reactions होते जाएगा and that can even lead to and a kind of explosion. तो ये कुछ चीजें मतलब जो काम करते हैं अभी, जैसे स्पेस शिप्स के लिए जैसे है एस्ट्रोनॉट्स बोलो या फिर जो है, या फिर यू हैव नासा, या फिर ये अभी जस्ट रिसेंट एग्जांपल दिया मैंने कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इवन BRC, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. सो ये जो सेंटर्स होते हैं यहाँ पे यू हैव चांस ऑफ गेटिंग सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड इनटू मैनमेड, बट अननोन. मैनमेड में है बट अननोन है कि अपना पर्पसली कोई जाके आग लगा देगा तो वो दैट इज कंप्लीटली मैनमेड, बट दिस इज अननोन बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज द एक्सीडेंट्स. इंटरनेशनल में देखो बॉम्ब, फायर एंड फोर्स्ड माइग्रेशन. व्हाट इज फोर्स्ड माइग्रेशन? लाइक अभी जस्ट जो हुआ था, somebody said yes, so under somebody's pressure they are expecting you to leave you. Why should I leave my country or my place? And when I don't want to, but if I am told to do that, then I am being compelled to do that thing. That is forced migration. ठीक है? Yes. Effects of disaster पढ़ेंगे. Any of you boys can be? Yes. Effects of disaster. We have understood the serious effects of disaster with the help of above mentioned questions. Collapsing of bridges, flooding of coastal villages, shortage of food are some of the problems of floods. Collapsing of houses, developing cracks in land are some of the effects of earthquake. Disasters like forest fire and drought also adversely affect the environment. However, that is exact nature of these disasters. Whether there are any changes in nature before the occurrence of disasters. For how long the effects occur after the occurrence of disaster. How? It needs to be think over all these aspects. This helps us to understand the nature of gravity of the disaster. Disasters definitely affect the economy of the nation.
हाउ डिजास्टर्स अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन. इससे पहले का आप लोग को समझ गया रहेगा इस नॉर्मल इंग्लिश. हाउ डिजास्टर्स अफेक्ट द इकोनॉमी. डैमेज किस चीजों का होता है? Construction रोड्स है, infrastructure you can say. People lives, the loss of property, loss of life also, right? And the main right now अभी जो last year चल रहा था pandemic, तो इकोनॉमी हिल ही रहा था पूरी तरीके से. अभी भी वैसा ही है कंडीशन. We are not coped up completely out of that, but yes, we are on the verge of coping up. अभी ये ऐसे ऑफलाइन चीजें रही तो शायद 3-4 साल में, 2-3 साल में हम लोग, 1 साल में we can say that okay, we are coping up with it, because again we are not a developed country, we are a developing country. That's again one of the difference. अगर रिसेशन होता है अदर कंट्रीज में, जैसे अमेरिका में रिसेशन हो जाता है, तो उसमें से वो लोग उतने ही जल्दी कोप अप भी हो जाते हैं. Do you know this thing? Reasons, पॉपुलेशन कम है, डेवलपमेंट और डेवलप्ड ही है हर एक इसमें, but ठीक है प्रॉब्लम्स आते हैं, but they have that ability to get out of that problems or face it completely. अपने आप पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है and we have like, ठीक है मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, लिटरेसी रेट आल्सो कंपैरेटिवली वी हैव लेस कंपेयर्ड टू देम, राइट? सो इससे क्या होता है कि मतलब ये एक चीज उन्होंने वही अच्छे से बोला है कि इकोनॉमी गेट्स कंप्लीटली शैटर्ड बिकॉज ऑफ दैट. एंड इट रियली टेक्स, कोविड का ही देखेंगे तो लास्ट ईयर इसी टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, दिवाली तो था बट जैसा दिवाली इंडिया में होना चाहिए वैसा नहीं था. बेचारे सेलर्स बाहर नहीं निकल पा रहे थे बिकॉज दे वर नॉट अलाउड, एंड गवर्नमेंट वाज राइट एट इट्स पार्ट, बिकॉज गर्दी देखा है लोगों का इस दिवाली में. मास्क पहने हैं, कोई नहीं पहना है, बट पीपल आर जस्ट रोमिंग, दे वांट टू जस्ट परचेज थिंग्स एंड दे आर राइट एट देयर साइड आल्सो. एंड यू कैन सी द ये वेंडर्स भी जो थे, they are having a lot of things to sell above. You have a lot of people on the roads because now it is allowed and they have just taken out their things. या फिर you can say कि उनको चांस नहीं था, तो even nation का इकोनॉमी गेन करने का एक अच्छा ही है. Because I'm earning, but if I'm not spending, तो I'm only earning and saving it. Spend होगा तो टैक्स लगेगा, तो everything. I hope you understand. तो सेविंग अलग से वो होता है चीजों का. समझ में आ रहा है? वो एक चीज है. टेररिज्म तो आपको पता है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, डिवास्टेट ही कर देता है. टेररिज्म के बारे में अगर बात करने जाएंगे तो सो यू हैव मूवीज लाइक हॉलिडे एंड ऑल दोस, जिसमें आप देख सकते हो कि या इसमें you can see that how it gets devastated completely and what lot of loss. Then again you can have the bombing example from USA. Let's see, हिरोशिमा एंड नागासाकी में उन्होंने जो बॉम्ब किया था उसका इफेक्ट्स अभी तक है. तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ पावरफुल things do they have and how powerful they are. कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का चांस होता भी है तो it is really going to kill each all of us, because if USA is having powers, so why would India and China be quiet? Even they will have their own powers. Like ठीक है ना, हम भी करेंगे कुछ ना कुछ, ऐसा करके सब एक दूसरे को मारने जाएंगे तो everybody is going to die ultimately. ठीक है? Yes. Continue. That effect is always relative to disasters and economy. That is, if any port is destroyed, there are long-lasting effects on economy due to huge expenses on its reconstruction. An effect of disaster on social leadership is that if local leadership is not strong enough, citizens become confused. It affects their participation in rescue and rehabilitation activities. Administrative problems arise during the disasters. If local governing bodies are affected by disasters, related departments cannot answer the problems of disasters efficiently. All the concerned departments are affected by disasters and thereby entire system collapses. Yes. So इसमें ये सब चीज तो आपको पता ही है ना, मतलब पोर्ट, एयरपोर्ट बोलो या फिर any of the water port also, like you'll be having the examples like in between I think there was some Suez Canal, वही था मैंने पढ़ा था शायद से, बड़ा सा शिप जहाँ पे होल्ड हो गया था Suez Canal के यहाँ पे. And you have oil spills also can be one of the disaster ही बोल सकते हैं oil spill को. अभी after this we will move to that chapter, इसमें लोग माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे अभी उसके बारे में after this.
You have different microbes which help you to get rid of the oil spills, and you get rid of the many of the things. इसमें हम लोग पढ़ेंगे हर एक माइक्रोब के बारे में, we'll be studying into that. तो उसी हिसाब से अगर ऑयल स्पिल होता है तो वी फील लाइक हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा गिर गया है, थोड़ा सा हो गया. ट्राई फ्रॉम योर होम. अभी दिवाली हुआ तो बहुत सारा घी एंड ऑयल विल बी यूज्ड एट योर होम. सो व्हेन यू गो टू वॉश ऑल दोज, यू कैन जस्ट मेक आउट हाउ एंड व्हाट लेयर ग्रीसी फॉर्म इट मेक्स. वही अगर ड्रिंकिंग वाटर बॉडी पे वो पूरी तरीके से फैल जाता है, सो यू कैन रियली अंडरस्टैंड दैट हाउ इट कैन मेक अ लेयर एंड इट वोंट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड एंड जस्ट ruining all the aquatic life. So मैं तो उसको एक बायोलॉजिकल डिजास्टर की तरह ही मैं उसको अंडरस्टैंड करती हूँ. नेक्स्ट वन, एनी वन ऑफ द गर्ल. यस, रीड लाउडली. हाँ, पढ़ेगी कैसा, ध्यान दे. कहाँ पे पढ़ रही है बॉक्स? और यू आर गोइंग टू रीड नाउ. सी, और यू आर गोइंग टू रीड. मैं बताती हूँ. इकोनॉमिक डिजास्टर एंड देन द ग्रीन कलर बॉक्स which is given there, that you will read. ठीक है. एनवायरमेंटल डिजास्टर, ग्रीन वाला बॉक्स, and then you have the medical disaster and then blue वाला box. Understanding? Disaster, larger or complete collapse. Sudden increases in fund expenditure, shortage of funds for development of other sectors, Productivity. disaster and environmental disaster, partition and collapsing of buildings, drying out of water, contamination of water, speaking pollution of environment, Stinky pollution. stinky pollution of environment, administrative professional, stress on workers, collapsing of transport system, shortage of facilities, etc. Medical Who's reading? injuries, emotional, mental Don't. stress, increasing epidemics, death of the What is epidemic? What is epidemic? वो डिजीज हो गया. एपिडेमिक डिजीज मतलब क्या? एक एपिडेमिक होना मतलब ये प्लेग का एपिडेमिक हुआ, एपिडेमिक नहीं सॉरी, एपिडेमिक हुआ मतलब वर्ड. पेंडेमिक अभी हुआ जैसे. सो व्हाट इज एपिडेमिक? हाँ, लार्ज अमाउंट में या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में वहीं पे इफेक्ट हुआ है तो उसको एपिडेमिक आउटब्रेक करके बोलते हैं. प्लेग या फिर प्लेग हो गया, मलेरिया हो गया, तो उसी एरिया में वो उसका हॉटस्पॉट बन जाता है. जैसे कोरोना का हमने देखा था कि बहुत सारे हॉटस्पॉट्स है. तो हॉटस्पॉट मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है. Wow, we come under the hotspots. No, you have a lot of patients under there. So that's not a good thing, obviously. I hope you understand it. तो वो एक एपिडेमिक होना मतलब उस एक किसी भी डिजीज का आउटब्रेक होना. डिजीज का आउटब्रेक होना कैन ऑल्सो अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन. हाउ? रिलेट. लाइक एपिडेमिक होना किसी भी डिजीज का कैन ऑल्सो अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन. हाउ? सब बीमार पड़ेंगे तो कोई काम पे नहीं जाएगा. तो बीमार पड़ेंगी तो काम पे कोई जाएगा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली योर हेल्थ डजंट सपोर्ट यू टू डू सो. वहां पे प्रोडक्टिविटी कम होगा तो बेसिकली दैट इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द नेशन ओनली. प्रोडक्टिविटी लेस गेटिंग सोल्ड ऑफ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेस गेटिंग परचेज. प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग ही लेस हुआ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन. ठीक है, फाइन. वही चीजें दी है उन्होंने कि लाइक हाउ व्हाट इज एन इकोनॉमिक डिजास्टर. तो अभी हमने जो रिसेंटली अभी जस्ट डिस्कस किया इज अगेन इकोनॉमिक डिजास्टर. मेडिकल डिजास्टर, डेथ ऑफ द विक्टिम्स, इंजुरीज, इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस. स्ट्रेस के बारे में तो हमने बहुत पढ़ लिया है सोशल हेल्थ में. दैट व्हिच कैन लीड इनटू ओके दैट इज अगेन अ सोशल और यू कैन से मेडिकल डिजास्टर बिकॉज पीपल, जैसे हमने मुझे लगता है सोशल हेल्थ में जितना भी पढ़ा वो सब सोशल
होते ना, मतलब सोशल डिजास्टर से रिलेटेड है वो सारी चीजें. People getting attracted to wrong things, suicidal attempts, right? Less patience and everything. ये इसमें बताने की जरूरत ही नहीं because this already we have covered in the previous chapter. ठीक है? Fine. Next page. Time बता दो मुझे जरा एक बार. 5 मिनट बाकी है. मैं कभी आई थी 6:15 पे एंटर किया ना मैंने. मैं सिसोलो को यहाँ पे आई भी नहीं. My bad, I asked you the question. ये क्या बोलेगा? चलो, nature and scope of disaster. Can you see nature and scope of disaster there? चलो उसको सबसे पहले टिक करेंगे. अब पेंसिल तो किसी के पास है नहीं ऐसा लग रहा है मुझे. है नहीं है? टिक करेंगे उसको IMP लिख देंगे वहां पे. Okay. Taking into consideration the scope of disaster, some of the important facts must be thought over as follows. वहां से लेके नीचे रिकंस्ट्रक्शन फेज दिख रहा है. ढूंढने में टाइम लग रहा है हम लोगों को. दिख रहा है ना? नोटबुक निकालेंगे और उतना पार्ट लिखना चालू कर देंगे. क्या? What time people are leaving? 7 o'clock ना? अभी 7 बजे में कितना टाइम बाकी है? 3-4 मिनट बाकी है ना? स्टार्ट राइटिंग.